مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف دبئی ایئرپورٹ سے پاکستان کے لیے روانہ۔ مسلم لیگ کی قائد اس وقت خصوصی طیارے میں ہیں اور اب سے تھوڑی دیر بعد اسلام آباد ایئرپورٹ اتریں گے۔ محمد نواز شریف 4 سال بعد وطن واپس آ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آزاد اور خود مختار ادارہ ہے۔ انتخابات کی تاریخ دینے کا وہی مجاز ہے۔ الیکشن کمیشن کی ترجیح میری ترجیح ہے۔ ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں۔ 4 سال بعد پاکستان واپس جانے پر خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ بہت ہی اچھا ہوتا آج 2017 کے مقابلے میں بہتر حالات ہوتے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ملک آگے جانے کے بجائے پیچھے چلا گیا۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی دبئی ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ مینار پاکستان لاہور میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ اس سلسلے میں گریٹر اقبال پارک میں جلسے کی تیاریاں مکمل۔ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ پارٹی کارکن ملک بھر سے لاہور پہنچ رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بے گناہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت سے پیدا تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے حملوں کی شدید مذمت۔ غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کی ضرورت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت فوری رکوانے کا مطالبہ۔ صہیونی سفاکیت بے لگام، فلسطینیوں پر بمباری جاری۔ شہداء کی مجموعی تعداد 4137 ہو گئی، 14000 سے زیادہ زخمی۔ ہسپتال، سکول اور مساجد کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ شمال سے جنوب تک کوئی بھی علاقہ بمباری سے محفوظ نہیں۔ غزہ میں ہر طرف تباہ شدہ عمارتیں، بڑی تعداد میں افراد ملبے تلے دب چکے۔ حماس نے انسانی بنیادوں پر 2 امریکی یرغمالی خواتین کو رہا کر دیا۔ سعودی عرب کی ایک مرتبہ پھر اسرائیل کی کارروائیوں میں فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت۔ فلسطین کے بنیادی ڈھانچے اور شہریوں کے خلاف اسرائیلی کارروائیاں روکی جائیں۔ مسئلہ فلسطین کے مستقل حل کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان۔ اقوام متحدہ دنیا بھر میں امن قائم کرنے کی اپنی بنیادی ذمہ داری پوری کرنے میں مکمل ناکام ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی اور جموں و کشمیر میں بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں روکنے والا کوئی نہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل میں مباحثے سے خطاب۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی سے چین کی پولیٹیکل کانسلر مس باؤ یونگ کی قیادت میں چائنیز میڈیا وفد کی ملاقات۔ پی ٹی وی، ریڈیو پاکستان اور اے پی پی کے ذریعے پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبوں کو اجاگر کرنے کا فیصلہ۔ مشترکہ رپورٹنگ، میڈیا وفود کے تبادلوں میں عملی تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ پاکستان چین کے صدر شی جن پنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مرتضیٰ سولنگی۔ غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں صرف 10 دن باقی۔ 31 اکتوبر تک غیر قانونی افراد کا ہر صورت پاکستان سے انخلا ناگزیر۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے 31 اکتوبر کے بعد کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو مزید 1 دن کی بھی مہلت فراہم نہ کرنے کا حتمی فیصلہ۔ ان افراد کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی جو ان کو پناہ دیں گے۔ پاکستان کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری ناگزیر۔ پاکستان 40 برس سے زیادہ عرصے سے لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ پاکستان نے 31 اکتوبر 2023 تک تمام غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدری کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ملک بدری کی کارروائی ان غیر قانونی افغان تارکین وطن کے خلاف ہے جو مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ نگران حکومت اور عسکری قیادت کا ملکی سالمیت و استحکام کے پیش نظر سخت اقدامات لینے کا فیصلہ۔ چینی اور تیل کی اسمگلنگ کے خلاف ایکشن کے نتائج منظر عام پر آ گئے۔ حکومتی ایما پر ماہ ستمبر سے ملک بھر میں چینی اور تیل کی اسمگلنگ کے خلاف آپریشن کا آغاز۔ ملک بھر سے تقریباً 1052 میٹرک ٹن چینی اور لاکھوں لیٹر تیل برآمد۔ اسمگلنگ کی روک تھام سے ملک کی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔
कनाडा और भारत के सिफारती ताल्लुकात में मजीद कशीदगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म के वाज़ेह मौक़िफ़ पर दोनों ममालिक के माबैन सिफारती ताल्लुकात अबतर हो गए। भारत में कैनेडियन सिफारती अमला भी गैर महफूज। 41 कैनेडियन सिफारतकार और सिफारती अमला भारत छोड़ चुके हैं। चंडीगढ़, बेंगलोर और मुंबई में कनाडा के काउंसिल खानों में तमाम सरगर्मियों की मुअत्तली के बाद उन्हें बंद कर दिया गया। श्रीलंका के जाफना अस्पताल में कत्लेआम को 36 बरस गुजर गए। 21 अक्टूबर 1987 को श्रीलंका के शहर जाफना में अस्पताल में भारतीय फौज ने होलनाक कत्लेआम किया, जिसमें भारतीय फौज ने बेगुनाह 47 तामुल मरीजों और 21 डॉक्टर्स को बेरहमी से हलाक किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक भारतीय फौजियों ने मुनज़्ज़म तरीके से अस्पताल में कत्लेआम किया और फिर लाशों को जला दिया। श्रीलंकन हुकूमत ने जाफना कत्लेआम को इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार दिया। Oh, that's gone. That's beautifully held. Labuschagne there. That ball was stuck. क्रिकेट वर्ल्ड कप जंपा की 4 विकेटें। मेगा इवेंट पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अफ्रीका के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा। और सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग अल हिलाल की अल खलीज को 1 गोल से शिकस्त। पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल अलेक्जेंडर मैत्रोविच ने किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक और आज की अहम खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ 4 बरस बाद वतन वापस लौट रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। मुस्लिम लीग की कायद इस वक्त खुसूसी तैयारे में हैं और थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरेंगे। तैयारे में लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी और मौलिज डॉक्टर अदनान समेत मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद, मीडिया नुमाइंदगान और गुलकार वारिस बेग भी सवार हैं। मुस्लिम लीग की कायद मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद में मुख्तसर क़याम के बाद लाहौर रवाना हो जाएंगे, जहाँ वो शाम को मीनार पाकिस्तान पर जलसा आम से खिताब करेंगे। वतन वापसी से पहले दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। इंतखाबात की तारीख देने का वही मजाज है। इलेक्शन कमीशन की तरजीह मेरी तरजीह है। हम 9 मई वाले हैं, 28 मई वाले नहीं। उन्होंने कहा 4 साल बाद पाकिस्तान वापस जाने पर खुशी महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा होता आज 2017 के मुकाबले में बेहतर हालात होते। उन्होंने कहा कि दुख की बात तो ये है कि मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे चला गया है। पाकिस्तान में इस तरह वाले हालात इंतहाई परेशान कुन हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा हमें आज दुनिया की बुलंद तरीन कौमों में होना चाहिए था। हालात बिगड़े हुए हैं, हमने खुद ही ठीक करने हैं। इक़्तिसादी लिहाज से, मुआशी लिहाज से, मुआशरती लिहाज से और फिर लोगों के हालात आप देखकर आप खुद भी जानते हैं कि कितने इस तरह वाले हालात परेशान कौन है। लेकिन उम्मीद की किरण है, उम्मीद को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हम इस काबिल हैं कि हम अब भी अपने हालात को ठीक कर सकते। हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ खुसूसी तैयारे के जरिए दुबई से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। इसके बाद वो लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। हमारे नुमाइंदे आसिम नज़ीर भट्टी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनके साथ भी हम बात करेंगे। आपको आगाह करें कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ खुसूसी तैयारे के जरिए दुबई से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। इसके बाद वो लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां वो जलसा आम से खिताब करेंगे। वतन वापसी से पहले दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। इंतखाबात की तारीख देने का वही मजाज है। इलेक्शन कमीशन की तरजीह मेरी तरजीह है। हम 9
मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद पाकिस्तान वापस जाने पर खुशी महसूस कर रहा हूं। बहुत ही अच्छा होता, आज 2017 के मुकाबले में बेहतर हालात होते। नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि दुख की बात है कि मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया। पाकिस्तान में इज़्तिराब वाले हालात इंतहाई परेशान कुन हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि हमें आज दुनिया की बुलंद तरीन कौमों में होना चाहिए था। हालात बिगड़े हुए हैं, हमने खुद ही ठीक करने हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन आमद के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। खुसूसी तैयारे के जरिए दुबई से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, जहां इसके बाद वो लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 4 बरस बाद वतन वापस लौट रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। मुख्तसर क़याम के बाद वो लाहौर के लिए उड़ान भरेंगे। लाहौर में वो जलसायाम से खिताब भी करेंगे। आसिम नज़ीर भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर एयरपोर्ट पर ही वो मौजूद हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे। जी आसिम, बताइएगा एयरपोर्ट पर क्या इंतजाम किए गए हैं मुस्लिम लीग नून के इस्तकबाल के लिए और कायद कैसे जलसागाह तक पहुँचेंगे? जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद में मुख्तसर क़याम के बाद लाहौर एयरपोर्ट जब आएंगे तो उनको यहाँ पर साबिक़ वज़ीर आज़म और उनके छोटे भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे अपने दीगर रहनुमाओं के साथ, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ। इसके बाद नवाज शरीफ यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो जलसागाह पर उनको ले जाया जाएगा और रास्ते में जो है वो उनको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से रास्तों को सजाया गया है और जलसागाह में जाने से जो है वो पहले यहाँ पर नवाज शरीफ अपने दीगर रहनुमाओं के साथ मुलाकात भी करेंगे। एयरपोर्ट पर कुछ मीटिंग्स भी होंगे यहाँ पर, जिसमें वो जो है वो लाहे अमल तैयार करेंगे कि जलसे में किस हवाले से जो है वो बात करनी है और अपना जो उन्होंने स्टेटमेंट वहाँ पर देनी है और जो जलसा आज तारीखी जलसा हो रहा है उसमें क्या उन्होंने खिताब करना है, उस चीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसके अलावा जो आज इंतजाम किए गए हैं इस पर जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो उनको मुकम्मल तौर पर ब्रीफ करेंगे इंतजाम के हवाले से भी और जलसागाह के हवाले से भी उनकी रहनुमाई करेंगे। इसके अलावा जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो लोग दुबई से आए हैं, जब वो लाहौर एयरपोर्ट पर यहाँ पर उनके साथ लैंड करेंगे तो उनके लिए खुसूसी बसेस का इंतजाम किया गया है, क्योंकि वो लोग जो है वो बसेस के जरिए यहाँ से जलसागाह रवाना होंगे। इनमें सहाफ़ी बरादरी भी है, उनके साथ जो दीगर रहनुमा भी हैं वो गाड़ियों के जरिए यहाँ से रवाना होंगे, जबकि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ अपने दीगर साथियों के हमरा, चंद मखसूस साथियों के हमरा यहाँ से हेलीपैड के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए हेलीपैड से जलसागाह की तरफ रवाना होंगे। शहर की हालत में आपको बताऊं तो यहाँ पर जो माल रोड समेत जो दीगर रास्ते में जो है वो उनको बड़े खूबसूरती से सजाया गया है। इसके अलावा जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है उसके लिए भी एक मुकम्मल प्लान तरतीब दिया गया है, जिसके तहत जो है वो जो जलसागाह की तरफ जाने वाले रास्ते हैं उनको जो है वो रुकावटें लगाकर भी रोका गया है और उनको डाइवर्शन दी गई है ताकि किसी किस्म की जो शहर में आम ट्रैफिक चल रही है उसको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। जी आसिम, ये आगाह कीजिएगा कि मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए आप लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। लाहौर शहर में और मजमूई तौर पर एयरपोर्ट की क्या सूरत हाल है? कारकुनान का कितना जोश व खरोश देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कारकुनान अभी यहाँ से कुछ देर पहले जब हम यहाँ से पहुंचे हैं तो कारकुनान आहिस्ता आहिस्ता, कुछ लोग पहले भी पहुंचे हैं, कुछ आहिस्ता सभी भी आ रहे हैं, चूँकि उनके आने के में अभी कुछ वक्त था तो इस वजह से कारकुनान ताख़ीर से पहुंच रहे हैं। चूँकि इस्लामाबाद पहले उन्होंने लैंड करना था, उसके बाद लाहौर आना था, तो ज़्यादा कारकुनान तो ज़ाहिर है जलसागाह की तरफ चले गए हैं और वहाँ पर भी उन्होंने जलसागाह में ही अपना एक माहौल गरमा रखा है। इसके अलावा जो रास्ते में भी कारकुनान कुछ खड़े होंगे, कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो बाय रोड जाएं, लेकिन जो ही उनको क्लियर हुआ कि उन्होंने बाय रोड नहीं जाना तो कारकुनान यहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए भी यहाँ पर बड़ी तादाद में आए हैं, लेकिन उनको ज़्यादा कारकुनान को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही क्योंकि सिक्योरिटी की रीज़न की वजह से, और वैसे भी उन्होंने यहाँ से हेली के जरिए चले जाना है तो कारकुनान उनसे मिलने के लिए भी बेताब थे कि शायद उनको नवाज शरीफ को देखने का एक मौका मिल सके, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकेगा यहाँ पर, क्योंकि वो ओल्ड एयरपोर्ट के जरिए जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से वो फ्लाई कर देंगे और वो जलसागाह के करीब जाके जो है उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। इसलिए कारकुनों को यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर भी रोका गया और कुछ कारकुनान अंदर भी चले गए हैं, लेकिन ज़्यादा कारकुनों को अंदर जाने से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि उनके साथ ना तो मुलाकात हो सकेगी, ना उनका इस्तकबाल के लिए उनको इजाज़त दी जा सकेगी। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम नज़ीर भट्टी, आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। एक जमे गफीर मौजूद है एयरपोर्ट पर भी, जो कि कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की एक झलक के लिए और उनसे महज मिलने के लिए वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर एयरपोर्ट पर उनसे मुलाकात नहीं हो सकेगी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। और वहां से थोड़ी देर में नवाज शरीफ जो है वो हेलीकॉप्टर पर मीनार पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। आगाह कर रहे हैं आपको, मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से खुसूसी तैयारे के जरिए दुबई से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। इसके बाद वो लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हमारे नुमाइंदे आपको तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। वतन वापसी से पहले उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और दुबई एयरपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है, इंतखाबात की तारीख देने का वही मजाज है। इलेक्शन की कमीशन की तरजीह मेरी तरजीह है। हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद पाकिस्तान वापस जाने पर खुशी महसूस कर रहा हूं। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुल्क भर के कारकुनान की काफिलों की सूरत में लाहौर आमद का सिलसिला जारी है। नून लीग के कारकुन खुसूसी ट्रेनों के जरिए लाहौर पहुंच रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मौसमुद्दीन इस वक्त हमें लाहौर रेलवे स्टेशन से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पूछ लेते हैं रेलवे स्टेशन पर क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप मौसम? मैं इस वक्त बदामी बाग स्टेशन पर मौजूद हूँ। मुल्क भर से जो स्पेशल ट्रेनें कल रवाना हुई थी वो अब से कुछ देर बाद लाहौर के बदामी बाग स्टेशन के ऊपर पहुँच जाएंगी। यहाँ पर उनका वेलकम करने के लिए भी कुछ लोग मौजूद हैं जो कि उन ट्रेन का वेलकम करने के लिए यहाँ पे आए होंगे। ये कहना है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो 4 साल बाद मुल्क वापस आ रहे हैं और उनका इस्तकबाल करने के लिए पूरे मुल्क से जो काफिले हैं वो चल पड़े हैं और आज वो लाहौर पहुँचेंगे। उनका एक शानदार इस्तकबाल किया जाएगा और आज पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ये देखेगी कि जब मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पे पहुँचेंगे तो उनका शानदार इस्तकबाल होगा। पूरा पाकिस्तान जो है वो मीनार पाकिस्तान पहुंचकर अपने कायद का इस्तेमाल करेंगे। इनसे लोग से पूछते भी हैं कि जो ट्रेन पे यहाँ लोग आ रहे हैं वो कब तक यहाँ पहुंचेंगे। सर, जो ट्रेनें काफिले चले हैं कब तक यहाँ पहुंचने वाले हैं सर? बिस्मिल्लाह, हमारी सिंध की जो है 2 ट्रेनें जो है, एक कराची से और एक जो है हैदराबाद से निकली है, वो तकरीबन 2 बजे तक जो है ना ट्रेनें यहाँ पहुँच जाएंगी और उसमें काफ़ी तादाद में जो है सिंध के लोग जो है उस ट्रेनों में आ रहे हैं और इतने लोग हो गए थे कि ट्रेन में बैठने की भी जगह नहीं थी। इतनी मोहब्बत है सिंध के लोगों की और ख़ास तौर पे हमें ये कहा गया कि सिंध के हवाले से टोपी और अजरक पहन के आएँ कि हमें अलग थलग एक हम नज़र आएँ कि सिंध के लोग जो है भी मियाँ साहब की मोहब्बत में यहाँ लाहौर पहुँचे हैं। इंशाल्लाह मियाँ साहब 4 साल के बाद आ रहे हैं और हमारे मोहब्बत मियाँ साहब के दिल में बसी हुई है और इंशाल्लाह मियाँ साहब आएंगे और इस मुल्क को खुशहाल करेंगे। अच्छा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल वापस आ रहे हैं, पूरे मुल्क से काफिले जो हैं वो आज लाहौर पहुँच रहे हैं, तो क्या लगता है कि मीनार पाकिस्तान जो है वो छोटा तो नहीं पड़ जाएगा जलसे के लिए? इंशाल्लाह छोटा पड़ेगा। मियाँ साहब एक पाकिस्तान का हिस्सा है और पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं। वो ऐसे नहीं है कि पंजाब के लीडर है। एक भाई ने इधर सवाल किया कि भाई सिंध वाले मोहब्बत करते हैं या नहीं। मेरे ख्याल में पंजाब से ज़्यादा सिंध मोहब्बत करता है मियाँ साहब से। इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब की मोहब्बत में उन्होंने कहा जी खाने वाने का बंदोबस्त नहीं है, इंशाल्लाह हमें खाने की ज़रूरत नहीं, हमें मियाँ साहब की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो कारकुनान हैं जो कि वेलकम करने के लिए मौजूद हैं, इस्तकबाल करने के लिए मौजूद हैं, का ये कहना है कि जो ट्रेनें हैं अब से कुछ देर बाद लाहौर में पहुँचेंगी और बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग के कारकुनान जो हैं वो उन ट्रेनों पर सवार हैं और आज यहाँ पर एक शानदार जलसा होगा और मीनार पाकिस्तान जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जलसे के लिए एक छोटी जगह पड़ जाएगी। अच्छा मौसम, ये कहिएगा कि रेलवे स्टेशन से जो मीनार पाकिस्तान का फासला है ये कितना है और कारकुनान क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही पहुंचेंगे या उनकी जलसागाह तक पहुंचाने के हवाले से खुसूसी ट्रांसपोर्टेशन का भी एहतमाम किया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर स्टेशन जो है वो तो जलसागाह से अगर हम किसी भी गाड़ी पे जाते हैं तो 5-10 मिनट का फासला है, लेकिन इसीलिए जो स्पेशल ट्रेनें जो आ रही हैं मुल्क भर से उनको बदामी बाग स्टेशन के ऊपर उनको कहते हैं स्टॉप दिया गया है और बदामी बाग स्टेशन जो है वो बिल्कुल मीनार पाकिस्तान के सामने ही है। जैसे ही यहाँ पे कारकुनान उतरेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल सामने मीनार पाकिस्तान है, तो बिल्कुल पैदल की मुसाफत है और उनकी आसानी के लिए जो कारकुनान यहाँ पे आ रहे हैं बदामी बाग स्टेशन का इंतखाब किया गया है और तमाम स्पेशल ट्रेन जो हैं वो आज लाहौर के बदामी बाग स्टेशन पर ही पहुँचेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मौसमुद्दीन आपका। आप हमें लाहौर रेलवे स्टेशन से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, अभी हम मज़ीद तफसीलात ले लेंगे अपने नुमाइंदे फ़हद जावेद से जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। फ़हद, बताइएगा इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप?
हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। यहाँ पर 2:05 पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो खुसूसी त्यारा है वो लैंड करेगा। वो एयर जो है दुबई एयर की खुसूसी फ़्लाइट 45-25 पर आ रहे हैं, जो कि तकरीबन लेट 1 घंटा एक लेट वहाँ से फ़्लाई की थी दुबई से। 10:30 पर वो फ़्लाइट जो है वहाँ से दुबई से उड़ी थी, जो कि तकरीबन 2:05 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँचेगी। तमाम जो मीडिया है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है। अभी तरफ एविएशन की तरफ से उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और जो लोकल मीडिया है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर खड़ा है कि जो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब यहाँ पहुँचेंगे, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे और यहाँ पर मौजूद जो उनके कारकुनान हैं एयरपोर्ट से उनसे एक शॉर्ट खिताब करेंगे। ताहम अभी इस बारे में कुछ हतमी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो दूसरी साइड पे हम जब एयरपोर्ट आ रहे थे तो उनके मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ काफ़िले जो हैं वो मोटरवे के थ्रू लाहौर जा रहे थे, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर एक जलसे से खिताब करेंगे। जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे उनका जो रुख है वो लाहौर की तरफ है, जहाँ पर वो मरकज़ी जलसे में शिरकत करेंगे। जी अच्छा फहद, मोटरवे की सूरत हाल से आपने हमें आगाह किया, यहाँ पर कारकुनों की कितनी बड़ी तादाद है जो लाहौर के लिए रवाना हो रही है, और बिलखुसूस एयरपोर्ट पर आप मौजूद हैं और एक मुख्तसर खिताब भी मुतवक्का है नवाज शरीफ का, तो यहाँ पर कारकुनान के हवाले से आगाह कीजिएगा कि कैसा जोश खरोश देख रहे हैं आप? जी, यहाँ पर क्योंकि एयरपोर्ट है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसके कुछ कवायद व ज़वाबित हैं, जिसके बायस अभी सिविल एविएशन की तरफ से कारकुनान को एयरपोर्ट की हदूद के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, दाखिली रास्ते पर रोका गया है, क्योंकि वहाँ पर ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कायद जो है मुस्लिम लीग नून के वो बाहर आकर खिताब करेंगे। तो हम अभी एयरपोर्ट की हदूद में जो है वो कारकुनान को और मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन अभी जो है कारकुनान की आने की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ज़्यादातर जो कारकुन है उनका लाहौर रुख की तरफ है, जहाँ पर लाहौर की तरफ उनका रुख है, जहाँ पर वो मरकज़ी जलसा होना है, जिससे मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी दीगर क़यादत खिताब करेगी। वो वहाँ पर जा रहे हैं और पार्टी की तरफ से भी हिदायत यही थी कि एयरपोर्ट पर लोग ना आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जलसागाह में पहुँचें, तो लोगों का जो रुख है वो लाहौर की तरफ है। जी बहुत शुक्रिया फहद जावेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अभी आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज वतन वापस पहुंचेंगे और लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर एक अजीम शान जलसे से खिताब भी करेंगे। लाहौर में की अगर बात की जाए तो लाहौर में पिंडाल सज चुका है, हर तरफ नून लीगी परचमों की बहार आपको दिखाई देगी, कुर्सियाँ सज चुकी हैं, साउंड सिस्टम पर नून लीगी तराने बजाए जा रहे हैं और आवाम जो है वो इंतहाई बेताबी से अपने कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का इंतजार करें। एग्जैक्टली, ग्रेटर पार्क है जी और अवाम का जमे गफीर है, तैयारियां मुकम्मल हैं। हमारे नुमाइंदे नवीद हयात इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में मौजूद हैं। जलसे के इंतजाम के हवाले से मजीद हम नवीद से बात करेंगे। नवीद, आगाह कीजिएगा कैसा समा है जलसागाह का, तैयारियों के हवाले से बताइएगा, और कारकुनान की आमद तो यकीनन अभी से शुरू हो गई होगी। लाहौर शहर की मजबूत सूरत हाल और वो रास्ते जो आज इस्तेमाल होंगे कारकुनान के लिए जलसागाह तक पहुँचने के हवाले से, उन पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त के हवाले से भी बताइएगा। लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो आज 4 साल बाद लाहौर पहुंच रहे हैं और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने उनके लिए इस्तकबाल के लिए और एक बड़ा जो है पावर शो करने के लिए मीनार पाकिस्तान का इंतखाब किया है। और मैं इस वक्त मीनार पाकिस्तान पर मौजूद हूं, जहां पर देखा जा सकता है कि उनके जलसे के हवाले से तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है और इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं और जो कारकुनान हैं वो चौक दर चौक जलसागाह में पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे शहरों से आने वाले लोग हैं वो भी जलसागाह में पहुंच रहे हैं। रात बल्तिस्तान का एक वक्त जो है वो मीनार पाकिस्तान पहुंचा था, जबकि अब जो इर्द गिर्द के जो दूसरे शहरों के लोग हैं वो भी मीनार पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और अपने महबूब कायद के इस्तकबाल के लिए, उनकी स्पीच को सुनने के लिए बेकरार है। इसके हवाले से अगर इंतजामात को बारे में बताया जाए तो इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। 12,000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं वो इर्द गिर्द तैनात किए गए हैं। 5 गेट जो हैं वो मीनार पाकिस्तान के नस्ब किए गए हैं, जिनमें मेटल डिक्टेटर और दूसरे इलाज नस्ब किए हैं, जिनकी जामे तलाशी के बाद कारकुनों को अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। कुछ ही देर बाद जो है नवाज शरीफ का तैयारा भी जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, जिसके बाद वो लाहौर एयरपोर्ट पर आएंगे। उसके बाद बजरिया हेलीकॉप्टर वो इस जलसागाह में शिरकत करेंगे, जिसके बाद वो लाहौर की आवाम और जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं उनसे खिताब करेंगे।
बहुत शुक्रिया नवीद हयात, आप हमें पिंडाल से खास तौर पर अपडेट कर रहे थे। लाहौर में पिंडाल सज चुका है। अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद से भी एक मरकजी रैली निकाली गई है, जिसकी क़यादत तारिक फजल चौधरी कर रहे हैं। ये रैली भी अपने रास्ते पर रवां दवा है। मजीद बात करेंगे रैली में मौजूद हमारे नुमाइंदा सदफ अफसल से। सदफ, आगाह कीजिएगा इस रैली की तफसीलात से, कितना जोशो खरोश है इस रैली में, कारकुनान की क्या तादाद है और कब तक एक्सपेक्टेड इसकी डिपार्चर है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर मोड़ पे, जहाँ से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का जो काफ़िला है वो लाहौर के लिए रवाना हो रहा है। हज़ारों की तादाद में कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं। हम तारिक फजल चौधरी साहब से पूछते हैं कि तकरीबन कितने लोग यहाँ से जो हैं वो अपने कायद की को खुशामदीद कहने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। आज हज़ारों की तादाद में कारकुनान इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों से आज यहाँ पे पेशावर मोड़ श्रीनगर हाईवे G9 के मकाम पर पहुँच चुके हैं और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे बसेस, कोस्टर्स वो सब जमा हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इसके अलग है। और मैं आपको ये बताऊँ कि इस्लामाबाद की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि लोगों ने वॉलंटरीली आके हमारे सेक्रेटेरिएट में अपने कारकुनान ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है, अपने मोबाइल नंबर्स के साथ रजिस्टर करवाया है कि जब चाहें जिसको चाहें आप चेक करें, हम इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान में मौजूद होंगे। तो ये जोश जज्बा मैंने इस्लामाबाद की तारीख़ में पहली दफ़ा देखा है, अनप्रेसिडेंटेड है। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पूरे पाकिस्तान से लोग कल से लाहौर के आना है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। इंशाल्लाह एक रिकॉर्ड साज जलसा होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान। पिछले जलसों के रिकॉर्ड ब्रेक होंगे, पाकिस्तान के रिकॉर्ड ब्रेक होंगे। सिर्फ नवाज शरीफ का पाकिस्तान में कदम रखना नहीं है, बल्कि खुशहाली और तरक्की का पाकिस्तान में कदम रखना है और यही हर पाकिस्तानी की उम्मीद है। और इंशाल्लाह उनकी क़यादत में मुस्लिम लीग नून अगला इलेक्शन एक दफ़ा फिर भारी अक्सरियत से जीतेगी और नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। बहुत शुक्रिया सदफ अफसल आपका हमें तफसीलात से अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज वतन वापस पहुँच रहे हैं। पार्टी के मरकजी कायदीन ने नवाज शरीफ की तारीखी इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल करते हुए लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे का इनेकाद किया है। मज़ीद तफसील बताएंगी शुमाइला जावेद। सांसों में बसा है प्यार तेरा, आँखों में तेरी मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुल्क भर से मुस्लिम लीग नून के कारकुन काफिलों की सूरत में लाहौर पहुंच रहे हैं। शहर भर में इस्तकबाली बैनर्स और पार्टी झंडे आवेजा किए गए हैं, जबकि मीनार पाकिस्तान जाने वाले रास्तों में इस्तकबाली कैंप्स भी लगाए गए हैं, जहां से मरकजी कायदीन रैलियों की सूरत में मरकजी जलसागाह पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है और पार्टी कारकुन मुल्क भर से लाहौर पहुँच रहे हैं। कारकुन ट्रेन के अलावा सूबे के मुख्तलिफ अजला से बसों और गाड़ियों के जरिए सूबाई दारुल हुकूमत पहुँच रहे हैं। शहर की अहम शाहराहों पर मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं के पोर्ट्रेट्स नस्ब किए गए हैं, जिन पर खैर मकदमी और इस्तकबाली नारे दर्ज हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का खुसूसी तैयारा दुबई से पाकिस्तान पहुँचेगा, जिसके बाद वो लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। इस हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। लाहौर में जलसागाह और इसके अतराफ की सड़कों पर 12,000 पुलिस एहलकार और 3,000 ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी देंगे। याद रहे कि मोहम्मद नवाज शरीफ नवंबर 2019 को उस वक्त की हुकूमत और अदलिया की इजाजत से इलाज मुआलजे के लिए लंदन रवाना हुए थे। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, मुल्क भर से कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून पेशावर और खैबर के काफिले भी पेशावर मोटरवे पहुँच गए हैं। काफिलों की क़यादत खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर अमीर मकाम कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल सबूर से। जी अब्दुल सबूर, आगाह कीजिएगा इस बारे में। पेशावर, खैबर, चरसद्दा, मोमंद और दीगर इलाकों से काफिले रवां दवा है सूबाई सदर अमीर मुकाम की क़यादत में। हम इस वक्त पहुँचे हैं यहाँ पे कर्नल शेरहान इंटरचेंज। यहाँ पर काफ़ी सारे कारकुन आ रहे हैं। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कारकुन मौजूद है और यहाँ से फिर थोड़ी देर रुकने के बाद यहाँ से फिर सवाबी इंटरचेंज पर रुकेंगे और उसके बाद काफिले लाहौर की जानिब रवाना होंगे। यहाँ पर कारकुनों का कहना है कि हम काफ़ी पुरजोश हैं, हम काफ़ी पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह नवाज शरीफ दोबारा आकर मुल्क की बागडोर संभालेंगे और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल सबूर आपका हमें तफसीलात से अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के कारकुन की आमद का सिलसिला जारी है और पार्टी कारकुन मुल्क भर से लाहौर पहुँच रहे हैं।
यहाँ पर मरकजी कायदीन रैलियों की सूरत में मरकजी जलसा का पहुंचेंगे। हमारे नुमाइंदा सिद्रा आसिम इस वक्त लाहौर में एक ऐसी रैली के दरमियान मौजूद है। आए उनसे इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। सिद्रा, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और क्या जोशो खरोश देख रही है लोगों में? अब से कुछ देर पहले हम सैफुल मलूक खोकर के हलके में मौजूद थे और हमने आपको बताया लोगों का जोश जज्बा। और अब इस वक्त मौजूद है जाती उमरा में। हम मियां जावेद साहब के हलके में, मिर्जा जावेद साहब के हलके में मौजूद हैं। आप अवाम का जोशो खरोश देख सकते हैं और साथ ही साथ आप कैमरे की आंख से हमारे लेफ्ट साइड पे शेर भी देख सकते हैं। ये भी इस शेर को लाने का क्या मकसद था, अवाम का जज्बा क्या है? मियां जावेद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या जज्बा है, क्या कहना चाहेंगे इस रश के अंदर, इस क्राउड में? फिर ये शेर भी साथ साथ रैली में करेंगे। असल बब्बर शेर तो लंदन से आ रहा है, लेकिन ये शेर है, शेर भी मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने के लिए जा रहे हैं। और वो तो कहते हैं ना मनारे पाकिस्तान क्या पूरा लाहौर जलसा गाह होगा। आप देखोगे जाती उमरा से लेकर लाहौर बिल्कुल पैक होगा, इसलिए कि एक मियां नवाज शरीफ साहब अमन का पैगाम लेकर आ रहे हैं, एक महंगाई के खिलाफ आ रहे हैं कि एक मीडिया टॉक भी की थी उन्होंने कहा। मीडिया टॉक अभी नहीं करेंगे। नहीं, अभी उन्होंने दुबई एयरपोर्ट पे एक मीडिया टॉक की, उसमें उन्होंने यही पैगाम दिया कि हमारा मकसद जो है वो आवाम को रिलीफ देना है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जब भी मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है ना, आवाम को रिलीफ मिला है। मियां नवाज शरीफ साहब ने यहाँ कारखाने लगाए हैं, लंगर खाने नहीं खोले, तो इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ इंडस्ट्री भी लगाएंगे, दहशतगर्दी भी ख़त्म करेंगे। आज ये जो बिजली के बिलों की लाइनें लगी हैं किश्तें कराने वालों की, इंशाल्लाह ये ख़त्म होगी, डॉलर भी वापस आएगा। जैसे ही CP एक्ट चलता है इंशाल्लाह पाकिस्तान कर्जा लेने वालों में नहीं, कर्जा देने वालों में होगा। अगर मियां नवाज शरीफ साहब को अवाम 5 साल देती है तो इंशाल्लाह देखोगे, उन्होंने तो सब्ज़ बाग दिखाए थे ना मियां नवाज शरीफ साहब ने। हम देख रहे हैं बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब हैं इस जलसे में। जोश जज्बा जो है वो काबिले दीद है। ये आपकी रैली जो है अब से कितनी देर तक जो है मीनार पाकिस्तान की तरफ जाएगी? हम थोड़ी देर में इधर से बस जाने लगे हैं। इंशाल्लाह रैली मीनार पाकिस्तान बहुत जल्द पहुंच जाएगी, क्योंकि रूट क्लियर है। हर कहने को हम शेरों की आवाज़ सुन रहे हैं, शेरों के नारे सुन रहे हैं, शेरों की आवाज़ सुन रहे हैं और अवाम का जोश आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद ये रैली जो है टूवर्ड्स मीनार पाकिस्तान जाएगी और क्या अपडेट है आपको हम देते जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्रा आसिम आपका। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खिलाफ इजरायली जारहियत से पैदा होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू में आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली बर्बरियत रोकने का मुतालबा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गजा की नाकाबंदी हटाने की ज़रूरत पर भी इत्तफाक किया। निगरान वज़ीर आज़म ने इसराइली काबिज़ अफवाज की जानिब से अस्पताल पर बमबारी की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद की पहली खेप भी रवाना कर दी है, जो मिस्र पहुँच चुकी है। वज़ीर आज़म ने बहरान के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने 2 रियासती हल पर मबनी तनाज़ा फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इआदा किया। सदर महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनी अवाम की देरीना और मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि आलमी इदारा दुनिया भर में अमन कायम करने की अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने में मुकम्मल नाकाम हो गया है। सलामती काउंसिल में मुबाहिसे से खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और जम्मू कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों को रोकने के मामले में मुकम्मल बेबस दिखाई दे रहा है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की नाकामियों को दूर करने और हकीकी मानों में नुमाइंदा इदारा बनाने के लिए इस्लाहात के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश किया। गजा में इजरायली बर्बरियत के शिकार फ़लस्तीनी आवाम की मदद के लिए पाकिस्तान की जानिब से अमली इक़दाम किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी तैयारा 81 टन इमदादी सामान लेकर मिस्र पहुंच गया है। अल अरीश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिस्र में पाकिस्तान के सफ़ीर साजिद बिलाल ने इमदादी सामान की पहली खेप वसूल की और उसे हिलाल अहमर मिस्र के सुपुर्द किया। पाक फौज और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से भेजे गए सामान में मौसम सरमा के लिए 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात शामिल हैं। यह सामान गजा में फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के हवाले किया जाएगा, जिससे मुतासरीन गजा को फौरी रिलीफ की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ा है और उनकी हिमायत जारी रखेगा।
اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں کے خلاف مظالم کی انتہا کر دی۔ شہری آبادی، ہسپتالوں اور عبادت گاہوں کو بھی نہ چھوڑا۔ اسرائیلی صہیونی فوج نے تازہ کارروائی میں غزہ کے قدیم ترین گرجا گھر پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں چرچ میں پناہ لینے والے 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت سے 1,500 سے زائد بچوں سمیت شہداء کی مجموعی تعداد تقریباً 4,500 ہو گئی ہے، جبکہ 14,000 شہری زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری میں 30% سے زائد مکانات تباہ ہو چکے۔ اسرائیلی سفاکیت کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بھی 10 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ اسرائیلی افواج نے شیبا فارم سے متصل جنوبی لبنان پر بھی گولہ باری کی ہے، جبکہ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کی حمایت ملنے کے بعد کسی بھی وقت غزہ پر اسرائیلی فوج کے زمینی حملے کا بھی امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کہتے ہیں کہ خود مختار فلسطینی حکومت کے قیام کے بغیر اس مسئلے کا کوئی حل ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی قوانین کے احترام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کا تحفظ لازمی ہے۔ ہسپتال، اسکول یا پھر اقوام متحدہ کی عمارتوں پر ہر طرح کا حملہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ مصری وزیر خارجہ سامح شکری نے غزہ میں جلد امدادی سامان پہنچانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ امداد کی ترسیل شروع کرنے کے لیے منصوبہ تیار ہے، جس پر اسرائیل کی جانب سے حائل رکاوٹیں ہٹانے کے بعد عمل درآمد ممکن ہوگا۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ صورتحال بدترین شکل اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ کشیدگی کم کرنے کی کوششوں میں کامیابی کے کوئی آثار نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سناک سعودی عرب کے دورے کے بعد مصر پہنچے اور صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں امدادی سامان کی فراہمی کے لیے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ غزہ میں شہریوں کو نشانہ بنانا گھناؤنا جرم ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے حملوں کا ایک مقصد سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے عمل کو سبوتاژ کرنا تھا۔ اپنے ایک بیان میں جو بائیڈن نے کہا کہ حماس کو پتا تھا کہ وہ جلد ہی سعودی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے پر بات کرنے والے تھے۔ امریکی صدر نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں زمینی جنگ چھیڑنے کے عمل کو ملتوی کرے تاکہ مذاکرات کے نتیجے میں مزید یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہو سکے۔ دوسری جانب فلسطین میں یرغمال بنائے گئے افراد میں سے 2 امریکی خواتین کو رہا کر دیا گیا ہے، تاہم امریکی وزیر خارجہ کے مطابق اب بھی 10 امریکی لاپتہ ہیں۔ ملائیشیا کے رہنما مہاتیر محمد نے غزہ کے اسپتال پر بمباری سے متعلق امریکی صدر کے بیان کو مضحکہ خیز قرار دے دیا ہے۔ ایک بیان میں مہاتیر محمد نے کہا کہ اسرائیلی حکومت فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی حمایت میں بائیڈن کا بیانیہ نتنیاہو اور پینٹاگون کے تاثرات پر مبنی ہے۔ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل حماس تنازع میں کوئی ہیرو نہیں، صرف متاثرین ہیں۔ ہیوسٹن کی رائس یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقوں کے تمام لوگوں کو مزاحمت کا حق ہے، چاہے وہ طاقت کے استعمال کے ذریعے ہو۔ میں فلسطین میں فوجی طاقت کی نہیں، دوسرے آپشن کو ترجیح دیتا ہوں۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف پوری دنیا میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مختلف ممالک میں اسرائیلی صہیونی افواج کی جانب سے جاری کارروائیوں کی مذمت جاری ہے۔ آسٹریلیا میں لوگوں کی بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہرہ کیا، بے گناہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیلی مظالم کی مذمت کی۔ سڈنی میں کیے گئے احتجاجی مظاہرے میں شریک افراد نے ہاتھوں میں پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل کے خلاف نعرے دشت تھے۔ مظاہرین نے دنیا کے مختلف ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ میں جاری مظالم بند کرانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف تھائی لینڈ کی دارالحکومت بینکاک میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہروں میں شریک افراد نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ فلسطین میں جاری مظالم بند کرائے۔ انہوں نے اسرائیلی بربریت کا شکار ہونے والے نہتے فلسطینیوں کی مدد کرنے کی بھی اپیل کی، جہاں پر جنگ کے باعث انسانی بحران کی سنگین صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ انڈونیشیا، ملائیشیا، الجیریا، اردن اور دوسرے ممالک میں بھی صہیونی بربریت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے اسرائیلی حملے روکنے اور ہنگامی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں پابندی کے باوجود ہزاروں افراد ریپبلک اسکوائر پر جمع ہوئے اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اس موقع پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ پولیس احتجاج کو دوسری جگہ منتقل کروانے میں ناکام رہی۔ اور اب آپ ملاحظہ کریں گے کھیلوں کی خبریں۔ السلام علیکم، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد انیس۔ کھیلوں میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ کے حوالے سے۔
کرکٹ ورلڈ کپ میں آج 2 میچ کھیلے جا رہے ہیں۔ پہلے میچ میں نیدرلینڈز کی سری لنکا کے خلاف بیٹنگ جاری ہے۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ لکھنؤ میں کھیلے جا رہے افریقہ کی ٹیمیں دن 1:30 بجے ممبئی میں آمنے سامنے ہوں گی۔ میگا ایونٹ کے میچز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 62 رن سے ہرا کر مسلسل دوسری کامیابی حاصل کر لی۔ 163 رنز کی اننگز کھیلنے والے ڈیوڈ وارنر مین آف دی میچ قرار پائے۔ 4 پوائنٹس حاصل کر کے آسٹریلیا پوائنٹس ٹیبل پر 4تھے نمبر پر آ گیا۔ قومی ٹیم ورلڈ کپ میں اپنے اگلے میچ کے لیے آج بنگلورو سے چنئی روانہ ہوگی۔ تفصیل جانتے ہیں ذیشان قیوم کی اس رپورٹ میں۔ بنگلور کی بیٹنگ پچ پر پاکستان نے ٹاس اوور میں شاہین آفریدی کی گیند پر اسامہ میر نے ڈیوڈ وارنر کا کیچ چھوڑ دیا۔ جواب میں اوپنرز کے اچھے آغاز کے باوجود پاکستانی اور محمد رضوان نے 46 رنز سکور کیے۔ آسٹریلیا کی جانب سے ایڈم زمپا نے 4 وکٹیں کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے خلاف میچ سے قبل بھارتی ٹیم کو شدید دھچکا۔ آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا انجری کے باعث میچ سے باہر ہو گئے ہیں۔ ہاردک پانڈیا بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں ٹکنے کی انجری کا شکار ہوئے۔ انجری سے چھٹکارا پانے کے لیے آل راؤنڈر کو کم از کم 1 ہفتہ درکار ہوگا، جس کے باعث وہ کیوی ٹیم کے خلاف میچ میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ ان کی جگہ سوریا کمار یادو یا ایشان کشن کو پلینگ 11 میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، افغانستان، بھارت اور بنگلہ دیش نے 4-4 جبکہ باقی تمام ٹیموں نے 3-3 میچز کھیلے ہیں۔ ایونٹ میں اب تک کی ناقابل شکست نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنے 4 میچز جیت کر 8 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ بھارت کے بھی 8 پوائنٹس ہیں، تاہم رن ریٹ کی بنیاد پر اس کی دوسری پوزیشن ہے۔ 4 پوائنٹس کے ساتھ جنوبی افریقہ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان کو ہرانے کے بعد 4تھے نمبر پر آ گئی۔ پاکستان کی 5ویں پوزیشن ہے، انگلینڈ کی ٹیم 6، بنگلہ دیش 7ویں نمبر پر ہے، نیدرلینڈز کی ٹیم 8ویں، افغانستان کی ٹیم 9ویں نمبر پر ہے۔ اب تک فتح سے محروم سری لنکا اپنے تینوں میچز ہارنے کے بعد آخری نمبر پر موجود ہے۔ ناظرین، ورلڈ کپ کی خبروں سے اتنا ہی۔ ابھی آپ کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔ شکریہ انیس۔ مزید قومی خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ لکی مروت کے علاقے سیموانڈا میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے مؤثر آپریشن کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک اور 1 کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ہے۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ہلاک اور زخمی دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف متعدد کارروائیوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران اسلحہ، آلات اور دھماکہ خیز مواد کا ذخیرہ بھی برآمد کیا گیا۔ مقامی آبادی نے سیکیورٹی فورسز کے دہشت گردوں کے خلاف بروقت آپریشن کو سراہتے ہوئے دہشت گردی کی لعنت کے جڑ سے خاتمے کے لیے بھرپور تعاون کا اظہار کیا۔ اور غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں صرف 10 روز باقی ہیں۔ 31 اکتوبر تک غیر قانونی افراد کا ہر صورت پاکستان سے انخلاء ناگزیر ہے۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی باشندوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے 31 اکتوبر کے بعد کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو مزید 1 دن کی بھی مہلت فراہم نہ کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے۔ 31 اکتوبر کے بعد غیر قانونی افراد کے انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ایسے تمام علاقوں میں ایکشن کیا جائے گا جہاں غیر قانونی غیر ملکی آباد ہیں۔ ان افراد کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی جو ان کو پناہ دیں گے۔ معینہ مدت کے بعد غیر قانونی افراد کو پاکستان نہ چھوڑنے کی صورت میں گرفتاری اور ملک بدری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری ضروری ہے۔ پاکستان 40 برس سے زائد عرصے سے 10,95,000 افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ پاکستان نے 31 اکتوبر 2023 تک تمام غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدری کا فیصلہ کیا ہے اور اس پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے۔ پاکستان کی جانب سے کسی بھی وقت ایسے افغان مہاجرین کو نکالنے کی بات نہیں کی گئی جو قانونی طریقے سے رہائش پذیر ہیں۔ ملک بدری کی کارروائی ان غیر قانونی افغان تارکین وطن کے خلاف ہے جو مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ افغان شہریوں کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان پچھلے 40 برس سے افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کرتا آ رہا ہے۔ پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی خطے میں پائیدار امن اور معاشی استحکام کا ضامن ہے۔
1 अक्टूबर को एपिक्स कमेटी इजलास के बाद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क छोड़ने की हिदायत दी गईं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को 31 अक्टूबर 2023 तक हर सूरत पाकिस्तान से चले जाने का इंतबाह दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से डेडलाइन के ऐलान के बाद अफगान बाशिंदे रज़ाकाराना तौर पर अपने वतन वापस जा रहे हैं। चीनी और तेल की स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन के नताइज मंजर-ए-आम पर आ गए। निगरान हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेज और अस्करी क़यादत ने मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के पेश नज़र सख्त इक़दामात लेने का फैसला किया है। हुकूमती इमा पर माह सितंबर से मुल्क भर में चीनी और तेल की स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक के अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर से तकरीबन 1052 मैट्रिक टन चीनी और 0.244 मिलियन लीटर तेल बरामद किया जा चुका है। चीन की पॉलिटिकल काउंसलर मिसबाह योंग की क़यादत में चाइनीज़ वफ़द के मीडिया के वफ़द ने निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों मुल्कों के मेन स्ट्रीम मीडिया के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला किया गया। PTV, रेडियो पाकिस्तान और APP के जरिए पाक चीन इक्तसादी राहदारी के मंसूबों को उजागर करने का भी फैसला किया गया। पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका रिपोर्टिंग, मीडिया वफूद के तबादलों में अमली ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक हुआ। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान चीन के सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कदर की निगाह से देखता है। BRI मंसूबा माशी तरक्की के जरिए अमन और खुशहाली लाने का मजहर है। उन्होंने कहा कि माशी तरक्की के लिए CPEC की अहमियत और चीन के साथ दोस्ती के हवाले से अवामी आगाही पैदा करने में मीडिया का किरदार नागुज़ीर है। मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि पाकिस्तान CPEC की आला मयार की तरक्की के नए मरहले में चीन के साथ मुख्तलिफ शोबों में रवाबित और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएगा। पाकिस्तान चीन के तरक्की के तजुर्बे से इस्तेफादा होने का ख्वाहां है। चीनी पॉलिटिकल काउंसलर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मीडिया समेत IT, ज़राअत और सनती शोबे में ताउन को आगे बढ़ाएंगे। अदायगियों के तवाज़ुन में बेहतरी के लिए हुकूमती तरजीहात और पॉलिसियों की वजह से करंट अकाउंट खसारे में नुमाया कमी आई है। मरकजी बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक सितंबर के दौरान करंट अकाउंट खसारा कम होकर $8 मिलियन रह गया है। तफसील बताएंगे मोहम्मद शाहिद। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा सितंबर में कम होकर $8 मिलियन रहा। अदाद शुमार के मुताबिक सितंबर के दौरान मुल्की दरामदात कम होकर $3 अरब 99 करोड़ रही, जबकि रवां माली साल अगस्त के दौरान मुल्की बरामदात मामूली इजाफे के साथ $2 अरब 43 करोड़ रिकॉर्ड हुई। दूसरी जानिब वजारत खजाने की जानिब से जारी करदा इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर अगस्त और सितंबर के दौरान तरसीराती ज़र में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदायगियों के तवाज़ुन में बेहतरी के लिए हुकूमती तरजीहात के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में कमी से ज़र मुबादला के ज़खायर पर मौजूद दबाव कम होने में मदद मिलेगी। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आगाह करेंगे आपको मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से, जहां भारतीय काबिज़ इंतजामिया ने कश्मीरियों की मजहबी आज़ादी पर ताज़ा हमले में एक बार फिर श्रीनगर की तारीखी मस्जिद को सील करके मुसलमानों को नमाज जुमा अदा करने से रोक दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय पुलिस ने मुसलसल दूसरे जुमे को जामे मस्जिद के दरवाज़ों को मुकफ़ल कर दिया और लोगों को मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं दी। काबिज़ इंतज़ामिया ने यह इक़दाम इस खौफ के पेश नज़र किया है कि कहीं तारीखी मस्जिद में नमाज जुमा का इज्तिमा इसराइल मुखालिफ और भारत मुखालिफ मुजाहरे में ना तब्दील हो जाए। काबिज़ हुक्काम ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक और मुमताज़ आलम दीन आगा सैयद मोहम्मद हादी को घर में नज़रबंद कर दिया। भारतीय हुक्काम ने गुज़श्ता रोज़ सीनियर हुर्रियत रहनुमा आगा सैयद हसन अल मूसवी को बडगाम में एक इमाम बारगाह के बाहर इसराइल मुखालिफ मार्च की क़यादत करने की भी इजाज़त नहीं दी। श्रीलंका के जाफना अस्पताल में कत्लेआम को 36 बरस गुजर गए। 21 अक्टूबर सन 1987 को श्रीलंका के शहर जाफना में अस्पताल में भारतीय फौज ने हौलनाक कत्लेआम किया। भारतीय फौज ने बेगुनाह 47 तामिल मरीजों और 21 डॉक्टरों को बेरहमी से हलाक कर दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक भारतीय फौजियों ने मुनज़्ज़म तरीके से अस्पताल में कत्लेआम किया और फिर लाशों को जला दिया। सन 2008 में श्रीलंकन हुकूमत ने जाफना कत्लेआम को इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार दिया। भारतीय फौज ने सन 1987 में वेलियोथ्राई में 64 निहत्ते शहरियों, 1988 में जावाकच शहरी में 40, जबकि 1989 में कोकोविल में 40 से ज्यादा बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया था।
अभी आपको बताएं कि कनाडा और भारत के सफारती ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए हैं। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल पर कैनेडियन वज़ीर आज़म की जानिब से भारत के मुलव्विस होने का बयान दिया गया था। कैनेडियन वज़ीर आज़म के वाज़ेह मौक़िफ़ पर दोनों ममालिक के माबैन सफारती ताल्लुकात अबतर हो गए। हुक्काम के मुताबिक भारत में कैनेडियन सफारती अमला भी गैर महफूज हो गया है। 20 अक्टूबर को कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा मेलानी जोली ने भारत और कनाडा के सफारती ताल्लुकात से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेलानी जोली ने भारत के साथ सफारती ताल्लुकात की मुअत्तली का ऐलान किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों और डॉलर की कदर में कमी के बायस कराची में भी आटा, दाल, चीनी और चावल की कीमतों में कमी वाक़ई होना शुरू हो गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे सोहेल जमाली। मैं इस वक्त कराची की होलसेल मार्केट में मौजूद हूँ, जो डेंसवाल का थोक बाज़ार कहलाता है। यहाँ पर भी पेट्रोल की कीमतों में कमी के बायस और रुपए की कदर में इस्तेहकाम और डॉलर की कीमतों में कमी के सबब होलसेलर्स का ये कहना है कि तमाम चीज़ों की कीमतों में कमी हुई है। चावल, आटा, दाल की कीमत में 10 से 70 रुपए की कमी हुई है। चूँकि बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं, तो डॉलर की कदर में जो मुसलसल कमी हो रही है और रुपए की कदर में इस्तेहकाम आ रहा है, उसका बराह रास्त फ़ायदा आवाम को पहुँचा है। और दुकानदारों ने और आवाम ने भी ये बताया है कि निगरान हुकूमत के आने के बाद जिस तौर डॉलर की स्मगलिंग रुकी है और मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, उसका बराह रास्त फ़ायदा आवाम को पहुँच रहा है। ज़िला इंतज़ामिया ने और हुकूमतों ने इस बात को यकीनी बनाया है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी का फ़ायदा बराह रास्त आवाम को पहुँचना चाहिए। जी शुक्रिया सोहेल जमाली आपका। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से भी लीगी रहनुमाओं की लाहौर रवानगी का सिलसिला जारी है। रवानगी से साबिक डिप्टी मेयर ज़ीशान नकवी ने बकरों का सदका दिया। रवानगी से कबल पार्टी कारकुनों ने नवाज शरीफ की बखैरियत वापसी के लिए दुआएं की। इस मौके पर मुल्क की सलामती के लिए भी दुआओं का एहतमाम किया गया। पार्टी कारकुन पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मुल्क भर की तरह खानेवाल से भी मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए काफिले रवाना हो रहे हैं। काफिलों की क़यादत साबिक MNA और MPS कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान नवाज शरीफ की आमद पर इंतहाई पुरजोश हैं। रवानगी से कबल हाजी इरफान खान डाहा ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ ही वो वाहिद लीडर हैं जो पाकिस्तान को इस माशी बहरान से निकाल सकते हैं। उधर लोधरा से सिद्दीक खान बलोच और सैयद मोहम्मद रफ़ीउद्दीन बुखारी की क़यादत में सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला अपने कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लोधरा से लाहौर के लिए रवाना हो गए हैं। काफिला दुनियापुर में मरकजी काफिले में शामिल हो जाएगा, जिसकी क़यादत साबिक वज़ीर मुमलिकत डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून अब्दुर्रहमान खान कांजू कर रहे हैं। नवाज शरीफ के लाहौर जलसे में शिरकत के लिए मीरपुर आज़ाद कश्मीर नून लीगी कारकुनों का काफिला मीरपुर से लाहौर के लिए रवाना हो गया है। नून लीगी काफिले की क़यादत साबिक वज़ीर चौधरी मोहम्मद सईद कर रहे हैं। रवानगी से कबल साबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद सईद का कहना था, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम के लिए उम्मीद की किरण है। जलसे में मियां नवाज शरीफ माशी पॉलिसी पेश करेंगे। और अब आप जान सकेंगे मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध और जनूब मशरकी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह में -3 और कालाम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। मौसम की इस रिपोर्ट के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। मनाजिर हुसैन और हुमा मलिक को दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ टीम की हमरा इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़।